جو بھی کتاب ہوتی ہے اس کے آخر میں جو آخری الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کے آخری الفاظ جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ آخری الفاظ جو ہے وہ سورۃ الناس ہے، الناس کے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والناس میں اصل میں جو ہے وسواس کے متعلق بتاتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو وسوسے ڈالنے والا کون ہے؟ وہ انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے، دونوں میں جو ہے یہ ہے، جس میں اصل میں بیسیکلی طور پر انسان بھی وسوسے ڈالتا ہے، اپنے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور جن بھی انسان کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اور اللہ کی پناہ اس کے جو ہمیں بچاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف پناہ محض ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہمیں وسوسے سے بچاتی ہے۔ شکوک و شبہات جتنے بھی ہے، وسوسے جتنے بھی جو ہے، جتنی بھی جو ہے دلوں کے اندر جو ہے یہ وسوسے جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دلوں اور دماغ دونوں جو ہے آپس میں جو ہے گہری ریلیشن شپ ہے۔ یعنی کہ دماغ کے اندر اصل میں وسوسہ آتا ہے، لیکن ہمارا دل اس کے ساتھ جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ تو وسوسہ جو ہے یہ انسان کو بہت دور تک لے کے جاتا ہے، اور انسان کی جو ہے وہ جڑوں کو کمزور کر دیتا ہے، جس سے انسان ہمیشہ کے لیے جو ہے جب وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، تینی وسوسے سے بہت سے لوگ پیدا اٹھا کے جو ہے آپ کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ میرے دوست مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بہت سے ذہنی مریض جو ہے وہ آتے ہیں ہمارے پاس، تو ان کے اندر ایک وسوسہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ وہ جو ہے ایک وسوسہ اور ڈر اور خوف لے کے جب ہمارے پاس آتے ہیں، ایک تشویش ہوتی ہے ان کے پاس، تو اس کی بات میں بات کریں گے، مزید اس کو جاری رکھیں گے۔ تو آج ہمارے پاس بڑے پیارے ایک حکیم صاحب ہے جی، حکیم محمد بن زکریا رازی، طب کا جامعہ اور بہترین معالج۔ ان کے والد صاحب جو ہے یہ بچپن میں فوت ہو گئے والدین، تو یہ خود اعتمادی کے ساتھ جو ہے انہوں نے ساری زندگی جو ہے یہ گزاری، خود اعتمادی بیسک یونٹ ہے، خود اعتمادی جو ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ جب والدہ نہیں ہوتے، بچہ یتیم ہوتا ہے، تو ہر بندہ جو ہے اس کو ٹیز کرتا ہے، اور اس کی ٹیز جو ہے بچوں کے اندر جو ہے بعض کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے اور بعض کو خود اعتماد بنا دیتی ہے۔ تو یہ دونوں پہلو یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں بیسیکلی طور پر بچپن سے ہی، کہ ٹیز جو ہے جو برداشت کرتا ہے وہ خود اعتماد ہو جاتا ہے، اور بڑا ہو کے جو ہے وہ ایک اچھا اور خود اعتماد شخص بن جاتا ہے۔ اور جو اس چیز کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتا وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، اور بچپن سے ہی وہ جو غلط کاری، چوری چکاری اور اس قسم کے دیگر فعلوں کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان فعلوں کو بھی سارے انجام دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ہے وہ غیر معمولی ذہانت اور فطانت جو ہے ان کے اندر موجود تھی، جس کی وجہ سے یہ بہت ہی خوش اخلاق اور بیدار ہونے والے جو طبیب تھے، ان کے اندر سونا بنانے کی اکثر میں خبت پیدا ہو گئی۔ یہ پہلے جو ہے یہ کیمیا گر تھے جنہوں نے سونا بنانے کی اور کشتہ سازی کا جو ہے وہ ابتدا کیا۔ کشتہ سازی میں ان کا نام بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے بہت سی جڑی بوٹیوں کے متعلق جو ہے وہ علم حاصل کر لیا۔ ایک دفعہ ان کی اپنی آنکھ خراب ہو گئی تو ایک طبیب کے پاس چلے گئے۔ وہ طبیب جو کل ہم نے ان کو جانا تھا، علی بن ربن تبری جو ہے، ان کا یہ شاگرد ہوگا جی۔
जब उनकी आंख को ठीक हो गया ना तो उन्होंने जो है मकबूल पैसे भी उनसे लिए। उन्होंने कहा कि मैं तो जो है वो तबीब अच्छा बन सकता हूँ, मैं जड़ी बूटी के बारे में अच्छा जानता हूँ। तो इन्होंने फिर तबीब बनने का जो है वो अज़म कर लिया और बहुत सी किताबें जो है पढ़ी। तबीब ने जो है वो राजी की सलाहियत के सही अंदाजा लगाया और उसको जो है खूब मेहनत करवाया। तो सबसे पहले ये जो है सरकारी शफाखाना के अंदर जो है ये वहाँ के मकदार के सरकारी जो मंसूर बिन साख की दावत पर उन्होंने जाइए कबूल किया और सरकारी तबीब जो मुकर्रर हुए। इस तरह से जब सरकारी तबीब मतलब बन जाता है, जैसे कि मैं एक सरकारी तबीब हूँ, तो हमारे पास हजारों किस्म के लोग जो है वो रोज आते हैं, हजारों। मैंने जो है ये आज तक, मैंने आज वैसे ही बैठा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने 9,45,456 मरीज देखे आज तक टीबी डिस्पेंसरी के अंदर। आप अंदाजा करें कि 9,45,456 मरीज मैंने जो है वो 30 साल के अंदर देखे हैं सरकारी डिस्पेंसरी के अंदर। तो इससे जो आप अंदाजा करें कि एक जो तबीब जो है वो कितने मरीज जो है वो रोज देखता होगा। मेरे पास 400 450 पेशेंट जो है वो डेली भी आते रहे हैं। जंग में ये जंग का इलाका, नैल लाहौर का इलाका, ये जो गांव वाले जो है ना, ये हम तबीबों पे बहुत ज्यादा इत्मीनान करते हैं। हमारे भाई जो है बाज़ का फारग बैठे होते हैं और हमारे पास जो है ना डबल डबल फट्टे भरे होते हैं उन्हें जो है ना। एक दफा जंग में सलाब आया, सर भी गए थे वो अपना अली शाह साहब और इनके साथ जो है, तो वो भी मेरी डिस्पेंसरी का विजिट करके गए थे तो नए लाहौर में। तो हमारे कमिश्नर साहब फैसलाबाद के उस वक्त जो है वहां से गुजरे थे, उन्होंने अचानक आके जो है विजिट किया। जंग में सलाब आया हुआ था, तो जब उन्होंने देखा कि 4-5 फट्टे भरे हुए हैं, फट्टे मतलब जिसपे मरीज बैठते हैं उसको कहते हैं जी, बेंच जिसको कह रहे हैं उर्दू में, तो भरे हुए हैं। और हकीम साहब जो है वो लगे हुए हैं दो दो। वो मेरे पास तशरीफ लाए कमिश्नर साहब, वो कहते हैं कि आप क्या इसको गिदड़ सिंगी देते हैं, भाई हमारे फारग बैठे हुए हैं और वो कौन सी गिदड़ सिंगी आप इनको सिखाते हैं कि आपके पास इतने मरीज है। तो मैंने कहा कि अल्लाह शुफा देता है, मेरा तो कोई इसमें जो है कमाल नहीं है, अल्लाह का सारा जो है अता करना हुआ एक सबब है। तो इस तरीका से जो है मैं जहाँ पे फैसलाबाद में 2015 से हूँ, तो यहाँ पे जो है वो हकीम शाह बशीर साहब पहले हुआ करते थे। तो उन्होंने जो है मेरा कंपटीशन था एक हकीम अजीज साहब के साथ, वो समुद्री से बिलोंग करते थे। मेरे जो है उनको दिल का प्रॉब्लम था और मेरे जो है नॉलेज जो है वो एमफिल पीएचडी टाइप था। तो इस तरीके से उन्होंने जो है मुझे सिलेक्ट किया। तो मतलब जो अपना यहाँ पे जो एमएस साहब थे, क्योंकि नॉलेज और इस वजह से जो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और हकीम बशीर साहब अपनी सीट पर खुद मुझे उठा के गया जब वो रिटायर हुए। तो ये बड़ी बात होती है एक सरकारी तबीब की। तो इतने ज्यादा पेशेंट देखने के बावजूद जो है हम बहुत सी जो है किताबों का मुताला भी करते हैं और अपने नॉलेज को अपग्रेड भी रखते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो है ये नॉलेज जब सरकारी तबीब मुकर्रर हुए तो अपने नॉलेज को अपग्रेड भी किया और बहुत सी किताबें भी इन्होंने लिखी। जैसे कि अपने वक़्त के ये इमाम कहलाए उस वक्त जो है फलसफा, नजूम, हैद और तबियात और कीमिया की बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी और ख़ास तौर पर नफ्सियाती मसाइल के ये बहुत ज़्यादा माहिर थे। सबसे पहले इन्होंने जो है वो अरक कशीद किया मुख्तलिफ अद्वियात का। अतार यहाँ से स्टार्ट हुआ, अतारी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो फरूकल अमराज इनकी जो है बहुत बड़ी किताब है। इसी के साथ इनके बहुत ज़्यादा और भी किताबें हैं जिनका जो किताबुल अलहावी जो है सूरी इनकी किताब है और इसी तरीके से और बहुत सी अच्छी किताबें हैं। ये भी नफ्सियात के जो है वो बेसिक बानी है और इनकी जो है वो कहावतें बड़ी मशहूर है। छोटी छोटी कहावतें, एक कहावत मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आपको जो है वो ऐसी छोटी छोटी बातें जो है एक तबीब को जो है, जब एक तबीब अल्लाह ताला उसके जेब में डालता है तो वो बहुत से ऐसे अमराज का इलाज कर गुजरता है जो कि हमारे भाइयों के वहमो गुमान में भी नहीं होता।
तो इन्होंने जो है सबसे पहले जो है ये एक मरीज इनके पास आया, उसको मुंह से खून आ रहा था। अब हम इसको जो है हमारे भाई तो उसको जो है वो हीमो का नाम देते हैं, वो हम उसको नक्शो दम और कैद दम कहते हैं जी, हम अपनी जुबान की बात करते हैं भाइयों को छोड़ के। तो नक्शो दम और कैद दम जो है, कैद दम का एक मरीज आया इनके पास। तो कैद दम के अंदर जो है हीमोपैटिक और इस तरह से जी कुछ कुछ बोलते हैं हमारे भाई, चले उसको छोड़ देते हैं। तो वो क्या दम का है, मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जिनको रोज टीबी 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 टीबी, मतलब बच्चे छोटे छोटे आते हैं उनको भी टीबी का टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट। तो उनको जो है वो उन्होंने कहा कि इनको जो है ये टीबी नहीं है, और हकीम साहब ने जब उसको चेक किया, उसने सवाल किए, तो टीबी की कोई अलामत नहीं थी। टीबी के अंदर ये मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसमें भी खून आता है, उसमें जो है वो मुंह से खून नहीं आता बल्कि फेफड़ों से खून आता है। तो वो नक्शो दम होता है बेसिकली तौर पर। कैद दम में ये फर्क है कि वो जो है वो मृदा से खून आता है। तो अब उसको कैद दम की शिकायत थी, उन्होंने अच्छी तरह से चेक किया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा हकीम साहब ने कि भाई आपने जो है वो रास्ते में कहीं से पानी तो नहीं पिया था? वो कहते हैं हाँ जी, मैंने जौहर और तालाब का रास्ते में पानी पिया, हौज और तालाब का पानी पिया, मरीज ने बताया। तो आपने जो है तदबीर की कि घास बोवाई, घास फूस, जिसको जो है वो हम सारा रेवन भी कहते हैं, इस किस्म की घास फूस उन्होंने बोवाई। तो जिससे जो है मरीज को उसको खिलाई, तो उसको क्या हुई, जब क्या हुई तो जूक निकली उसके अंदर से, जो है वो एक जूक निकली जो कि पानी, हौज के पानी पीने से या तालाब के पानी पीने से उसके अंदर चली गई थी। उसने जाके मृदा के अंदर जख्म कर दिया और मृदा से खून आ रहा था, तो उन्होंने इसको निकाल दिया। तो ये इस तरह के हकीमों के कमालात थे, और अब भी इसकी किस्म के कमालात हैं। मैं ये कहता हूँ कि हम जो तबीब एक सरकारी तौर पर जब बैठे होते हैं, तो वहां पे जो हमारे कमालात होते हैं, मतलब सुबह से शाम तक कमालात होते हैं। इसलिए कमालात होते हैं कि हम 1000 डॉक्टरों में एक हकीम है। तो ये हमारी जो है ये मतलब एक तबीब की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सीट है। कमालिये से लेकर लालिये तक जो है ये डिवीजन है। तो ये अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने एक बड़ी जो है वो सीट दी हुई है मुझे। तो इस तरह से जो है ज़करिया ने जो है बहुत सी किताबें और भी लिखी, अलाज बिल तरतीब, और कुछ हुक्मरानी से जो है वो हुआ, तो उसको खून थूकना वो बंद हो गया, मतलब उसको जो खून आ रहा था वो बंद हो गया, जो जब धूप निकल गई। तो इस तरीके से उन्होंने तजवीज़ जो है इस तरह से की। तो इनके कुछ अकवाल हैं जो हकीम साहब के हैं, तो कुछ जो है वो मेरी भी इस मतलब क्या किताबें जो मेरे दोस्तों ने पढ़ी हुई है और मेरे दोस्तों इसको जानते हैं। लेकिन अपने भाइयों के लिए कुछ जो है वो तहरीब तिब जो मेरी किताब है जी, सबसे पहले इसमें जो है बेसिकली तौर पर कुलियात और उसके बाद नफ्सियात और उसके बाद जो है इनवर इलाज के बारे में थोड़ा सा जो है गजाई इलाज, इसमें सिर्फ गजाई इलाज है तहरीब तिब के अंदर। तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये मदीना यूनिवर्सिटी की कुछ स्टूडेंट जो है वो आती है डेली गजार गजाइत के लिए, जो है हमारे वहाँ पे मैडम एक लेक्चर देती है डेली। मैडम फातमा को जानते हैं, मैडम सोबिया, सोबिया इस तरह का नाम है। तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो है वो हमारे हॉस्पिटल में लोग आती है, मुझे बच्चियाँ, तो कभी कभी मेरे पास भी आ जाती है मतलब जो है। तो उन्होंने भी, किसी बच्ची ने जो है मेरी तहरीम तिब जो है किताब जो है वो पढ़ी हुई थी, तो वो बड़ी खुश हुई मुझे मिल के। सरकारी डिस्पेंसर की अद्वियात की लिस्ट, तरीकाकार तिब, डिस्पेंसर गाइड, बच्चों की नफ्सियात, माने हमल तिब्बी अद्वियात, ये मेरी कुछ बुक्स हैं जो कि पहले शाया हो चुकी है। तो जो दोस्त इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो वो जो है वो जानते होंगे और इन्होंने पढ़ी भी होंगी। तो आखिर में हम जो है वो अकवाल राजी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मरीज को हमेशा सेहत की उम्मीद दिलाते रहना चाहिए, इसके सामने मायूसी का इजहार नहीं करना चाहिए। तो मायूसी जो है ये गुनाह है, अल्लाह ताला की ज़ात से हमेशा पूरा उम्मीद रहना चाहिए। यही जो है, क्योंकि जिस्म की सेहत
अखलाक नफ्स के ताबे है और नफ्स में मायूसी का असर हो जाना सेहत को नामुमकिन बना देता है। जो तबीब इलाज में दवा से कम और गजा से ज्यादा काम लेता है वो आला दर्जे का तबीब है। तीसरे नंबर पे आपने फरमाया कि तबीब की हालत मुतदिल होनी चाहिए। मतलब कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे मतलब में जो भी आता है हमारे क्लिनिक पे, जिसको हमारे भाई क्लिनिक कहते हैं, हम उसको मतलब कहते हैं, हमारे मतलब में जो भी आता है तो वो जो है बंदा जो है हम उसकी पोजीशन भी नहीं देखते, नॉर्मल पैसे लेते हैं, जो मुनासिब फीस है उसको लेते हैं, और उसमें जो है वो इतनी ज़्यादा हम कम फीस भी नहीं लेते कि हम मुफलस हो जाए, और इतनी ज़्यादा जो है वो ज़्यादा फीस भी नहीं लेते कि हम लोगों की नज़र में जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे बन जाए। तो हमारी नज़र जो है मरीज़ की जो है वो जेब पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो है दर पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो है वो मरीज़ को शफाए कामला आजला अता करवाने में होनी चाहिए। जो मरीज जल्द मालिज को बदलते रहते हैं वो अक्सर जो है वो गलतियां करते हैं। तो मेरा जो है मौक़िफ़ कहने का ये है कि हम जो है वो जब भी मरीज हमारे पास आता है तो उसको हम जब चेंज कर लेते हैं मालिज को जो है वो मतलब अब देखिए ना, हमारी अंग्रेजी रियात है नहीं कि चंद दिनों में जो है चंद घंटों में उसको वक्ती शफा दे दे। हमारी तो देसी अद्वियात मुस्तकिल जड़ से खाने वाली अमराज को, जिससे हम मुकम्मल शफाए कामला अजला अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो मरीज को मिलता है, और जरूर मिलता है लेकिन देर से, अंधेर नहीं उसमें होता। एक तबीब की जो है पहुंच जो है वो मरीज के मर्ज के सबब पर होती है, और सबब को रफा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और सबब को जब दूर किया जाता है तो मुकम्मल शफा हो जाती है, बनिस्बत के हम रोज जो है वो नशे की नींद की गोली खा के जो है मरीज को डिप्रेशन से निकालते नहीं बल्कि और डिप्रेशन का शिकार जो है वो कर देते हैं। तो हम जो है वो बात कर रहे थे कल भी जो है मरीज की ज़हनी कैफियत के बारे में। तो हमारे मुल्क में जो है ये कर्जा जो है ये एक बड़ी बड़ी लानत है, और ख़ास तौर पे सूद को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। तो जो लोग जो है कर्जा लेते हैं तो वो भी ज़हनी इंतशार और ज़हनी अमराज का शिकार हो जाते हैं। कर्जा क्योंकि एक ऐसी लानत है, एक ऐसी बुरी बला है जिसमें जो है वो इक़्तिसादी तौर पर जब बंदा जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है मेंटल होने की जो है 90% चांसेस कर्जा की अदायगी में होता है, और सूद दर सूद, और सूद दर सूद, मतलब इस तरह से जो है कि इतना ज्यादा बंदा डूब जाता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि 3% का बैंक वादा करते हैं, और 3 से सिफरा अपने पास से जीरो, जीरो की क्या वैल्यू है, जीरो जो है वो साल लगा लेते हैं, 30% हो जाता है। 3% का आपसे उन्होंने जो वादा किया है, और उसके साथ 0 लाख के 30% हो, 30 का फिर उसके बाद जो है वो कई गुना 30 हो जाता है जी। तो मैं तो जो है ये देखा है कि जो बंदा भी कर्जा लेता है वो ज़हनी जो है वो अमराज का शिकार लाजमी हो जाता है। इक़्तिसादी लिहाज से बच्चों के मुस्तक़बिल और बहबूद के लिए जो है वो बहुत से लोग कर्जा लेते हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह होता है, और हमेशा के लिए वो इस कर्जे के अंदर डूबे रहते हैं। तो कर्जे में कोशिश करनी चाहिए कि हम जाइए ना लें, जितना अल्लाह ने दिया है उसमें गुजारा करें, बेहतरीन अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला कभी भूखा नहीं सुनाता, सिर्फ ये है कि आप थोड़ा सा सब्र और शुक्र का जब आप कलमा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आपकी अज़वाजी ज़िंदगी की जो है वो की वाकफियत जो है, यानी कि एक दूसरे को समझना नहीं कि आप कुछ करते ही नहीं जी, आप कुछ लाते नहीं। एक बंदा जो जिसकी मुनासिब आमदनी अल्लाह ताला ने किसी को बेकार पैदा नहीं किया, तो इस तरीके से मुनासिब जो है वो अगर कोई बंदा कमा के लाता है तो उसकी अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है कि उसको उतने अखराजात नहीं करने पड़ते। मतलब अगर ये है कि अगर आप गलत तरीके से या इस तरह से जो हराम का पैसा या कर्ज का पैसा लेके आएंगे वो इस तरह से उड़ता है, इस तरह से 10 मिनट में उड़ जाता है, और बाद में देना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इर्द गिर्द के मसाइल पैदा होते हैं, और जिनको मरीज के लिए जो है वो हमें जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। उसकी ज़हनी इंतशार के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। ज़हनी इंतशार के अंदर जो है वो वहम और वसवसा जो है ये भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं।
जिसके अंदर जो है तफ्तीश भी शामिल है कि हम जो है वो हर वक्त मरीज को जो है कोई ना कोई जो है वो तफ्तीश लगी होती है। सोच खौफ डर के साथ जो है वो ज़हनी थकन पैदा हो जाती है। जब जो है वो ज़हनी थकन पैदा हो जाती है तो ज़हनी तौर पर उसमें जो है वो बरामदगी पैदा हो जाती है, यानी कि बुरा उसके ज़हन के अंदर जो है वो ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। जब ये इसका जो है आपस में चोरी दामन का साथ थकन सारा दिन मैं इधर देखता हूँ, रजाबाद में मेरा जहाँ क्लिनिक है वहां पे जो है ये 24 घंटे 48 घंटे लोग लगाते हैं लोगों के ऊपर, फिर भी पूरी नहीं पड़ती उनकी। पता नहीं किस दौड़ में लगे हुए हैं और क्या जो है। अब 48 घंटे लोगों के ऊपर काम करके वो बेचारे का बचेगा क्या? जवानी भी तबाह हो जाएगी और बुढ़ापे तो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा ना। तो दिली थकन जो है ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कुव्वत फैसला नहीं होती, यानी कि कमजोर होती है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी जो है बेकैफ और जो है ये बड़ी बेजार और जो है वो बड़ी अजीब किस्म की होती है। कुव्वत फैसला ना होने की वजह से वो किसी काम को टिक के करते ही नहीं। कोई भी फैसला जो है ना करने की वजह से वो अपने कामों को अधूरा छोड़ देते हैं और उनके काम पेंडिंग ही रहते हैं। कुव्वत फैसला एक बेहतरीन चीज है। कुव्वत फैसला डिसीजन पावर जो है, जैसे कि खुद इत्मीदी जो है वो हमें बेहतर करती है, इसी तरह से कुव्वत फैसला जो है वो भी हमें बेहतर करता है। असल में हमारे मुल्क में 90% काउंसलिंग नहीं है। बाहर के मुल्कों में मैंने देखा है काउंसलिंग वहां पे है। वहां पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप काउंसलर के पास जाते हैं, वो आपको गाइड कर देता है अपनी फीस लेके, तो आप उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को जो है वो एंजॉय करके चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कोई काउंसलर नहीं है। अगर कोई है भी उमर किया काउंसलर तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब का काउंसलर है और कुछ भी नहीं है। पर हमारे मैं आई एम सॉरी टू से दैट हमारे जितने भी जो है ये काउंसलर हम काउंसिल जो है वो लेने के लिए जो है वो ठीक है जी हम जाते हैं, लेकिन वो असल में जो है वो हमारे काउंसलर जो है वो बल्कि काउंसिल करने के बजाय हमें डराते रहते हैं कि अजाब अजाब अजाब। भी आपसे काउंसिल लेने आए हैं, आप जो है उसको अजाब की बजाय जाइए, हमें जो है वो कंसंट्रेट करें, हमारे जो है वो कुव्वत फैसला को बेहतर करें। जिंदगी की बेकैफ और जो है इस तरीके से जिंदगी बेकार। तो ये जो है वो इस कदर खौफ पैदा कर देते हैं हमारे काउंसलर जो है, हमारे काउंसलर कि हम जो है वो एक जो है वो उनका एक अलग ही जो है वो फिर शुरू हो जाता है काम कि ये जी बहुत से लोग जो है वो इन वजूहात और हालात की वजह से जो है वो इंतशार का शिकार हो जाते हैं, जिसमें जो है वो अपने आप को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं कि मुझ में ही कसूर है, जबकि ऐसा नहीं है। असल में जो है असबाब कुछ और होते हैं, हम ढूंढते कुछ और है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहाड़ और दरैली में भी अल्लामा इकबाल साहब ने फरमा चुके हैं और जुगनू में भी अल्लामा इकबाल साहब फरमा चुके हैं कि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बेकार पैदा नहीं की। तो असल में मसला ये है कि हम जो है वो असबाब के जो है वो जानने के लिए मरीज की ज़ात को जो है वो जानने के साथ जो है वो वालिद जो है वो असल सबब ढूंढने के साथ साथ उसका जो है वो मुकम्मल तौर पे इलाज करता है। बार बार कामों में तब्दीली, अदम दिलचस्पी, ताहट बेदारी और ये सब जो है वो एक किस्म के जो है वो असबाब है, जिसकी वजह से जो है वो आपका किसी काम में अगर दिल नहीं लगता तो आप जो है वो नया काम ढूंढने की तरफ जो है वो चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने वहां पे जो है अगर आपका रिज़्क रखा हुआ है तो आपको जरूर मिलेगा। मासवाए ज़हनी कैफियत के, तो इस तरीके से ऐसी ज़हनी कैफियत पैदा हो जाती है जिसमें जो है यानी कि नाश होने की वजह से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़हनी कैफियत पैदा हो जाती है, जिसमें चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। किस्मत का रोना कुछ नहीं है भाई, किस्मत का रोना कुछ नहीं है, आपका अपना रोना है। किस्मत तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन हर इंसान की बनाई है और आप ये देखेंगे अल्लाह ताला ने हर इंसान को नेचर पे पैदा किया है। जब आप बच्चे की पैदाइश होती है इस वक्त जो है वो नेचुरल पैदाइश होती है, तो अल्लाह ताला ने हर बंदे के नेचर में जो है वो पैदा किया है। तो क्योंकि आप बहुत से काम जो है वो देखा देखी शुरू कर देते हैं कि वो जो है बड़ा कामयाब है जी, उसने जो है वो मतलब जो है वो
इस तरह से जो है वो, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया आपका और मकसद भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपने जो है ये डीसी में जो है वो BEMS को पढ़ाना है, तो और भी मतलब कि बहुत सी दुनिया के ऐसे धंधे हैं जो आप कर सकते हैं। यानी कि BEMS के अलावा जो है और बहुत से डिपार्टमेंट है, न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जिसमें जो है हम पढ़ा सकते हैं। तो मदीना यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और इस तरीके से बहुत सी जगह हैं जहाँ पे जो है वो आपकी किस्मत जो है वो लिखी हुई है। बेशक आप 10 साल तक ट्राई करते रहे, लेकिन नहीं मेरी किस्मत में तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जब मेरी किस्मत में होगा तो देखें। अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ वेबिनार के ऊपर डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब की मुनासबत से, क्योंकि मुझे शौक था कि मैं BEMS को पढ़ाऊं, तो अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया और मैं जो है ये अपने शौक को पूरा कर रहा हूँ। तो ये एक जब लगन होती है किसी भी चीज के बारे में, शौक होता है, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब जो है वो पैदा कर देते हैं, जैसे कि ये सबब पैदा हुआ। तो ये मैं डॉक्टर साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि वो मुझे मौका देते हैं, तो इस तरीके से जो है ये मेरा शौक भी पूरा हो रहा है। इस तरह से जब ज़हनी थकावट हो जाती है तो हम ये सबब मालूम हमें जब तक ना हो तो हम फजूल सोचते रहते हैं। तो मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं। मैंने एक बंदा जो है वो हमारे वहाँ पे जो है ये ग्रेड 1 पे आ रहा था, 1 नंबर पे, तो मुझे जो है इतनी ज़्यादा सिफारिशें और इतनी ज़्यादा जो है ये प्रेशराइज किया गया कि मैंने उसको जो है वो रिजेक्ट करके किसी और बंदे को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो अल्लाह ताला ने उसका सबब बना दिया, उसका जो साहिवाल मेडिकल कॉलेज में उसका जो है वो मतलब कि जो है वो अपॉइंटमेंट हो गया। तो अल्लाह ताला जो है बेहतरीन सबब पैदा करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है ये घबराने की बात नहीं है। तो थोड़ा सा जो है वो क्या है जी, हमें अपनी फजूल सोच को जो है वो बेहतर करके जो है सबब को तदारक करने में जो है वो अहम किरदार अदा करने में कर सकते हैं। मरीज की ज़हनी इंतशार दूर करने में जो है वो उसकी बेहतरी लाने में हम जो है वो एक मालिज एक अहम किरदार अदा कर सकता है। असबाब को जानने के लिए जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत से ऐसे असबाब हैं जिसमें जो है बसारत की कमजोरी है, बहुत से लोग जो है वो देख नहीं सकते सही तरीका से। लेकिन मैंने हमारे साथ सोशल वेलफेयर वाले हैं, उस्मान साहब है, उन्होंने भी एमफिल जो है GCC किया है सोशियोलॉजी में, तो वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर लगे हुए हैं। हालांकि उनको जो है वो रात को नजर अंदराता है, उनको नजर नहीं आता, दिन को भी वो सही तरीके से देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सवाब के मुताबिक जो है वो मकाम दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो देखने का सही तरीका, तवज्जो और ध्यान, एक वक्त में जो है हम लोग किताब भी पढ़ रहे हैं, साथ टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। इस तरीके से 6 काम जो है वो एक वक्त में जब हम करते हैं, तो ये इसकी मिसाल ऐसे है कि हम जो है वो मुख्तलिफ बर्तन जो है एक थाल में रख के ले आए आपके सामने, और उसके बाद थाल को पीछे कर दे तो पूछे कि बताया भी कौन सी चीजें थी। तो ये बेतरतीबी जो है ये जो है वो असल में जो है वो ज़हनी इंतशार का सबब बनती है। तो जब हम जो है वो ज़हनी इंतशार का सबब जो है बनेगा, अगर हम उनको तरतीब से वाटर सेट को लहदा रख के लिए 2 गिलास और 1 जग को, और इसी तरीके टी सेट को लहदा लेके जो है वो चैनक और 1 कप जो है रख के लिए, तो आप उसको फौरी तौर पर जो है पहचान जाएगी, ये वाटर सेट है, ये टी सेट है और ये डिनर सेट है, कि मेरे खाने का सेट है, मतलब एक थाल के अंदर। तो अगर उसको जो है आप इकट्ठा करके सब कुछ जो है डगर मगर करके ले आए, तो ये तरतीब जो है बेसिकली जो है हमारी जिंदगी को जो है वो बेहतर करने में वो अहम किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से हमें जो है वो अपनी वर्जिश को भी मद्देनजर रखना चाहिए। बहुत से जो है ऐसे आते हैं मेरे पास जिनको जाने का जो शौर नहीं होता, शौक नहीं होता, वो खेलों में हिस्सा नहीं लेते, और इस तरीके से जो है वो एक डगर में लगे हैं, सोच में लगे हुए हैं, और इस तरीके से जो है वो अपने ही काम के अंदर जो है वो मगर रहते हैं। तो थोड़ा सा अपने लिए जो है उनको टाइम निकालना चाहिए। तो टाइम निकालने का मकसद ये है कि अपने लिबास की तरफ अपने जो है वो
चीज़ों से बचना चाहिए। कुछ जो है मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, किस तरीके से हम जो है वो मायूसकुल ख्यालात से हमें बचना चाहिए, हमें मुस्बत रवैये को अख्तियार करना चाहिए, सेहतमंद जहनीत पैदा करनी चाहिए, जज्बाती कशमकश से बचना चाहिए, तो फकरात का जो है वो दामन से हमें जो छुड़ाना चाहिए, सेहतमंद ज़िंदगी को अपनाना चाहिए। बुढ़ापे में सेहतमंद ज़िंदगी बेहतरीन चीज़ पैदा करती है। नफरत से बचें, मोहब्बत को अपनाएं और हसद, रकाबत, ऐशो इशरत और खौफ से जो है हमें बचना चाहिए। मुझे एक बंदा जो है उसका अगर एक गाल जो है लाल है तो आप उसको चाट मार के जो है दूसरा गाल क्यों लाल करते हैं? उसको अल्लाह ने जो है वो आला मुकाम दिया है, तो अल्लाह ताला जो है जो आपको जिस मुकाम पे रखा है वो भी आपके लिए आला है। सिर्फ समझने की बात है थोड़ी। अगर आप थोड़ी सी अपने आप को समझ बूझ पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप खौफ से निकल जाएंगे। मैंने एक चीज देखी है अंग्रेजों में, उनकी डिक्शनरी में नॉट नहीं है। मैं वहां रह के आऊँ, मैंने उनके साथ जो है वो वक्त गुजारा है कि नॉट नहीं है वहां, नो और नॉट, नेवर। तो अब नहीं तो कभी नहीं उनका जो है ये हमेशा जो है ये मैंने मकूला देखा है कि वो जो मुझे इन कुछ बातें उनकी पसंद है, तो वो जो है खौफ उनके अंदर जो नहीं है, अंदेशा नहीं है, पिछले काम को छोड़ देते हैं, अगले काम को स्टार्ट कर देते हैं और पिछली सोच को अपनाते ही नहीं। मतलब वस्सा और जेल के अंदर उनके जो है वो आता ही नहीं, मैंने ये देखा है। वो पिछले काम से सबक जरूर लेते हैं लेकिन वो सबक लेके अगले काम में वो इख्तियार जरूर करते हैं, लेकिन ये है कि नो एंड नेवर जो है उनकी जो है वो है शादी का खौफ, तबाही और बर्बादी का खौफ, फिक्र, कोशिश, खौफ से बचने का जो है वो होता है। और हमेशा जो है वो कादिर मुतलक पर हमें ये यकीन रखना चाहिए। तहकीक जो है वो हमारी तकनीक का मकसद है, हम जहाँ के मोरे हैं वहां ही फिट होंगे और किसी जगह पे फिट नहीं होंगे। तो इस तरीका से जो है वो फितरत को इसका अदराक है, यानी कि फितरत ने आपको बनाया, अल्लाह ताला की कुदरत ने आपको बनाया है, तो आपका अदराक है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला 72 माओं से भी ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। कभी दिमाग का तो देखें भी, कभी तो करके देखें, मुकम्मल रुजू करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके रास्ते खोल देगा। इस तरीका से हमें जो है वो सबसे बेहतरीन चीज है कि एहसास कमतरी को खत्म करना और परेशानियों को जो है वो बांटना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ जो है तामुल करना चाहिए और जिसकी वजह से हमें जो है वो वसवसों से निकल के जो है वो हमारे दिलों के अंदर जो है खुशी, खुशहाली और प्यार मोहब्बत जो है एक दूसरे के साथ जो है वो अपनाना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो जिन्नों और इंसानों के वसवसों से बचाते हुए हमेशा कामयाबी और कामयाबी की जो है वो रास्ते दिखाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों से, दिमागों से और दिलों से वसवसों को दूर करे। बहुत शुक्रिया सर।